Okay. So welcome all for this patent as an exam preparation. So this is your day 3, and today we are going to discuss on pre-grant and post-grant oppositions. So any idea what is pre-grant and post-grant opposition? What does this meaning? Pre-grant and post-grant means. Anyone? So pre-grant is after publication, but before grant of the patent. Post-grant is after grant of the patent, means 12 months from grant of the patent. Good. So the name itself says like this. Okay. So section 25(1) is regarding pre-grant opposition. And who can file? Sir, person Any person interested. interested or assignee. Any person. Any person interested. Correct. Yes. You do one thing, I will share the number of person. Can you hear me now? Yes, sir. My mic. Can you hear me now still? Yes, sir. Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this mic is working now. So what is the meaning of any person? Any person means it can be any university or company or an individual. The basic idea between a person interested and any person is that person interested needs to have business, R&D, some relationship with the project, right? But any person means the person need not to have any business or R&D, anything, any that area. Is it clear? So this is the basic difference between person and the person interested. So any person means anyone. You need not to have any R&D or any business or anything related with the patent. But if it says a person interested, that means you should be engaged. You should be engaged in doing business or promoting research in the same field in which the invention is related. So in patent document, you will see this word. The invention is related to the field of. Okay. So for example, you are doing research in quantum mechanics. Okay. And a person has filed a patent for gene mutation kind of work, bio-related. So are you any person or person interested? Yes. Yes. So it can be any person like individual, college, university or R&D company. Anything be there can be considered. And I said that, say, for example, there is one person, Prem, and there is one other person, Devajit. So Prem has filed application for a patent in the domain of quantum mechanics. And Devajit, he is working on plant genomics. He has no relationship with the quantum mechanics. So will Devajit will known as any person or person interested? Any person. So any person. Why? Because he is from different field, na sir. That's why. Correct. Very good.
So Devajit can Devajit file pre-grant opposition for my patent or not? Since it's any person, yes, sir. Answer. Correct. Very good. So you should learn like this, very with clarity. So when to file? Patent application is published but not yet granted. Okay, it has not been granted. So you need to see. So it is published but not yet granted. So if it is published, then you can file this. So how to oppose? How to oppose pre-grant oppositions? So सर it is फॉर्म 7 फाइल करना पड़ेगा सर. इसको टेक्निकली बोलते हैं representation by way of opposition. So you can file representation. You can represent by way of opposition. So what is the meaning of? So there is something called notice of opposition. When we study this post-grant opposition, there they say that you are giving notice of opposition. But in this case, we say by way of representation, opposition by way of representation. So what is the difference between opposition by way of representation and notice of opposition? Any idea? Sir, representation means going with the company, and opposition means going opposite. Means totally is the opposite. No, so this is a legal language. Okay. So I will tell you what is the meaning of notice. Okay. So when we give a notice, this become a legal. It creates a legal proceedings. So I am giving notice, and then it's my right that controller should invite me. वो मुझे सुनना चाहिए मुझे. Okay. And then controller will automatically form a board opposition. क्योंकि अब कंट्रोलर की जिम्मेवारी है कि मुझे वो आंसर देगा मुझे. Okay. And then I have some rights of hearing, present the evidences and appeal. Representation कैसा है? Because it is any person, कोई भी आकर के they can file representation. So it's like you're just bringing the matter to the notice of controller. So filing opposition by representation means I'm just a good citizen, and I see that there is a problem in this patent that is going to be granted, not yet granted. अभी publish हुआ है. So I'm just helping controller to understand if it is patentable or not. So I'm just sharing my view. So because I'm not from this field, okay, so just like in example you talked about, so my application is in the field of physics, quantum physics, kind of very some application on those area. And other person, Devajit, he's on plant genomics. He may not have any idea about what my application is, but he thinks that there is something wrong with the application and should not be granted. ऐसा सोचते हैं. So he just helping the controller, and therefore he does not become party to the examination. Okay, and then he must file a request for hearing. मतलब वो बोलना चाहिए कि मैं इस पे हियरिंग चाहता हूं. अगर वो खाली रिप्रेजेंटेशन देते हैं, if he just gives representation, तो कंट्रोलर उनको सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे. He will not call him that you come and let's discuss what it is. ये होता है रिप्रेजेंटेशन. मतलब आपको कुछ ज्यादा राइट रहता नहीं है. You are just helping controller in the position. इसीलिए whenever this pre-grant opposition and post-grant opposition की बातें होती है, and you are writing an answer, keep this in mind that pre-grant opposition is only by representation. I'm just representing.
आई डोंट हैव मच राइट्स, मतलब हाँ किसी ने बोल दिया, जैसे जैसे कैसा है कि अगर पकड़ लो कहीं पे कुछ कुछ हो रहा है और आप उसमें पार्टी में नहीं हो, मतलब यू आर नॉट इन दैट पार्टी। फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच हो रहा है, ओके, क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच में किसी ने फॉल कर दिया, तो एज ए ऑडियंस आप बोल सकते हो नहीं मुझे लगता है ये फॉल हुआ है, पर आपका बात को कंसिडर नहीं भी कर सकते। लेकिन अगर उस एम्पायर है, थर्ड एम्पायर है, लेग एम्पायर है, जो भी है, सो इफ उसमें से कोई अगर बोलता है कि ये फॉल हुआ है तो उसकी बात को गंभीरता से ली जाएगी। सो समथिंग लाइक दैट। सो हम जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपना अपना व्यू रख रहे हैं, दे मे एक्सेप्ट, दे मे नॉट एक्सेप्ट इट, ओके। पर यहाँ पे क्या होता है, दे एक्सेप्ट इट बट राइट्स थोड़े कम होते हैं, ओके। सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग सो दैट यू remember this basic fact that pre-grant opposition is by way of representation and post-grant is by notice opposition. We are giving a notice. क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? सर बाय गिविंग नोटिस और अपोजिशन एक ही है ना, दोनों भी वर्ड? नहीं नहीं, वेरी गुड, वेरी आस्क। Pre-grant opposition is said, please keep it mute if you are not in the class. प्री ग्रांट में कैसा होता है, हम दोनों में फॉर्म जमा करते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्री ग्रांट ऑपोजिशन इट इज कॉल्ड लीगली बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्लियर? वी डू नॉट से इट्स ए नोटिस ऑपोजिशन, ठीक है। ओके। सो व्हाट यू से? Sir, in this case, who will reply? Means the controller will reply, right? हाँ, हम कंट्रोलर को ही फॉर्म देते हैं ना, फॉर्म वगैरह भर के कंट्रोलर को देते हैं, है ना। ओके लेकिन ओके, मतलब रिप्लाई सर, मतलब जो एप्लीकेंट है वहां से नहीं आएगा, ये कंट्रोलर से ही आएगा। ये दोनों में होता है, लेकिन टेक्निकल लीगल टर्म क्या है, इट इज in writing represent by way of opposition, so it is like opposition by representation only, it is not called notice of opposition, so ये मिस्टेक नहीं कर रहे। सर ये Okay, प्री ग्रांट अपोजिशन जो है, फॉर्म्स बोला आपने, 2 फॉर्म्स, ये क्या है सर? क्या क्या पता ये था? प्री ग्रांट। आई विल टेल। ओके ओके। अभी आपको समझ में आया ना, प्री ग्रांट को वी से अपोजिशन बाय रिप्रेजेंटेशन, नॉट एज ए नोटिस अपोजिशन नहीं बोलते इसको, क्या समझ में आया ना? क्लियर? Yes, sir. Any doubt you ask me, because in last class I understood that कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, so therefore I thought I will go slow. So कौन सा फॉर्म भरना है? दिस इज फॉर्म 7A भरना है, एंड इसका कोई फी नहीं है, इससे कोई पैसे लगते नहीं है, आप फॉर्म भर दीजिए और कंट्रोलर को भेज दीजिए। एंड इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रूल आपको करना है, दैट इज रूल 55। 55A में क्या बोलते हैं कि पेटेंट इज ग्रांटेड ओनली आफ्टर 6 months ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसलिए हमको कम से कम 6 महीने का टाइम तो मिलता है, ओके। सो पेटेंट में भी ग्रांटेड, बट 6 महीने पहले नहीं होगा। ये तो ऐसा होगा कि आज पब्लिश हुआ है एंड देन कल ग्रांट हो गया, तो हमको तो चांस ही नहीं मिलेगा इसको अपोज करने के लिए, प्री ग्रांट अपोजिशन का मौका ही नहीं मिलेगा हमको। इसलिए 55A जो है वो क्या कहता है, 6 महीने तक वो पेटेंट ग्रांट नहीं होता। सेक्शन 11A में इट गेट्स पब्लिश आफ्टर 18 months, लेकिन for 6 months it's not granted, after 6 months it may be granted, okay, it will take minimum 6 months। 58(2) में क्या कहता है, कंट्रोलर विल कंसिडर सच रिप्रेजेंटेशन, ओके, कंट्रोलर will consider such representation only when request for examination has been filed. This is very very important। अगर एक एप्लीकेशन जो है पब्लिश हो गया आफ्टर 18 months, ओके, सो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन का सेक्शन कौन सा है? सर 12। 11B. हाँ देवजीत बराबर है। 11B, sir. ओके, 12 हाँ, 12 वाला सर, वो एग्जामिनेशन। हाँ, पब्लिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो। एग्जाम में दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको।
Yes, sir. Yes, sir. Once you make a mistake, it is done. So under section 11B, request for examination कौन फाइल कर सकता है? Sir, Applicant ना sir? person interested होगा sir. Request for examination can be filed by the applicant or any interested person. सर इसमें असाइनी भी आएगा ना? हाँ, एप्लीकेंट आ जाएगा, हाँ, ऐसा नहीं आ जाएगा, इन्वेंटर भी आ जाएगा। देखिए ऐसा नहीं, इन्वेंटर दे आर वर्किंग इन दिस एरिया ना, सो दे मे बी एज ए पर्सन इंटरेस्टेड में कर सकते। ओके ओके। सो अंडर सेक्शन 11B, तो फॉर एग्जांपल ऐसा केस समझिए कि एक पेटेंट पब्लिश हो गया, ओके, पब्लिश होने के बाद आप यू आर ए पर्सन, यू आर नॉट ए पर्सन इंटरेस्टेड, मतलब आपका इस डोमेन में कोई R&D नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, आप अलग हो। सो यू आर नॉट ए पर्सन इंटरेस्टेड, यू आर पर्सन, बट यू फील ये पेटेंट ग्रांट होना नहीं चाहिए। नाउ यू यू वांट टू अपोज दिस अंडर प्री ग्रांट अपोजिशन, ठीक है? तो विल यू गिव नोटिस ऑफ अपोजिशन और अपोजिशन बाय रिप्रेजेंटेशन, क्या करोगे आप? क्या करोगे? सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्वेश्चन। So an application is published after 18 months and you are someone who does not have any R&D in the field of invention, and also you are not doing any business or economic activity in the field of invention. Now you want to give a pre-grant opposition, so you will file representation opposition by which method? As a notice or by representation? सर प्री ग्रांट तो सर यही होगा सर, रिप्रेजेंटेशन ही होगा। 7A। Correct, correct. So you should become confident, right? Confidently बोलिए। यस सर। Be confident ना, अभी डिस्कस किया हमने अभी। Okay, so now next question is that if I give free grant opposition by representation, will it be considered by the controller? What is the condition? Only if request for examination is filed. Very good. So controller will consider my representation. So what controller will do? How long to wait? बताइए। So I think the controller will send a reply to the person who have filed 7A. नहीं, it is only by way of representation. Controller का कुछ उसमें वो नहीं, मतलब उसको कोई गरज नहीं है रिप्लाई करने की। He is not bound to reply the representation by opposition. अगर आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल फॉर्म 7A भर के भेज दिया कंट्रोलर को, कंट्रोलर लेकर रख लेगा, नोट कर लेगा कि पेटेंट नंबर 1234 इसके अगेंस्ट में प्री ग्रांट अपोजिशन का फॉर्म 7A आया है। आपने तो फीस भी नहीं भरा, आपने तो कुछ भी नहीं दिया, आपने वो लेकर रख लेगा। तो मेरा क्वेश्चन है, कितने दिन तक वेट करेगा कंट्रोलर? Sir, till the examination part is over, I think. नहीं, टिल द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन इज फाइल्ड, लिखा था यहाँ पे, सी है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो बी मतलब आप ना उसमें रहिए। सो अनलेस यू आर इन, आप जब तक उसमें
नहीं आएंगे, सिर्फ सेक्शन याद करने से नहीं होगा. सो नाउ यू शुड, इसमें ही है. सर हाँ. सर कंफ्यूजन ये था कि सपोज ये रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन इज ऑलरेडी फाइल, राइट? तो हाँ, तो आप कंट्रोलर, करेक्ट करेक्ट. नहीं नहीं, कंफ्यूजन मत हाँ रखिए. तो आपको जो कंफ्यूजन है ना, नहीं मतलब आप बोलिए वो. हाँ सर, हाँ सर, अभी कंट्रोलर सर जब रिप्लाई करेगा मतलब इसमें रिप्लाई करेगा कि मतलब नहीं करेगा, मतलब प्री ग्रांट तो सर एप्लीकेशन फाइल हो गया, ही विल सी वेदर रिप्लाई रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन इज फाइल्ड और नॉट, सपोज इट इज फाइल्ड, तो सर हाँ, तो उसका नेक्स्ट स्टेप है. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, मतलब हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या, मतलब हाँ डिस्कस करते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो कि रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल नहीं हुआ है, तो कंट्रोलर कितने दिन तक वेट करेगा? ये समझ में आ रहा है? ये हाँ बताइए समझ मुझे, में आ गया सर। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल का लास्ट डेट कब होता है? सर अब विद इन 36 30 months. मंथ 31 मंथ्स, 30, 31 हाँ, मंथ्स करेक्ट करेक्ट. सो ये बताइए. सो देर इज 31 months फ्रॉम विच डेट? date of filing Priority date. for your ordinary cases, and for Date of national case, filing. priority date. हाँ, फाइलिंग प्रायोरिटी में. तो 31 मंथ तक वेट करेगा अगर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन नहीं हुआ है. So next is, so what is the role of controller now? This was being asked now. So under rule 53, controller क्या करेगा 55(3) में? He will just look at कि प्राइमरी फेसी केस बनता है कि नहीं बनता. अगर उसका प्राइमरी फेसी केस नहीं बनता है तो वो रिजेक्ट कर देगा वो, एंड विद इन 1 मंथ. और अगर मान लो कि आपने हियरिंग के लिए फॉर्म भरा, आपने उसमें रिक्वेस्ट बोला कि आई वांट टू हैव हियरिंग. अगर आपने कहा उसको, कंट्रोलर से लिखा आपने कि रिक्वेस्ट, मुझे हियरिंग करना है, देन कंट्रोलर विल बुलाएंगे आपको हियरिंग के लिए. और उसके बाद 1 महीना के अंदर, हियरिंग के 1 महीने के अंदर अपना डिसीजन दे देंगे आप. ठीक है. यानी प्राइम फेसी ऐसा कुछ होता है, देन एप्लीकेशन को, एप्लीकेंट जो है उसको इन्फॉर्म करते हैं विद इन 1 मंथ कि देखो आपके लिए प्री ग्रांट अपोजिशन आया है. एंड इफ इन केस ऑफ रिफ्यूजल और रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट, अगर अमेंडमेंट करना है, चेंज करना है, देन कंट्रोलर विल गिव नोटिस टू द एप्लीकेंट. सर प्राइमा फेसी मतलब क्या है सर? प्राइम फेसी एक लीगल लैंग्वेज है, मतलब उसको देख के लग जाता है ना कभी कभी, जैसे मतलब कि अगर आपने आपने कहा, से फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि अंडर सेक्शन 3D पब्लिश होना नहीं चाहिए, पर आप तो यू आर एनी पर्सन, मीनिंग आपका नॉलेज नहीं भी हो सकता उस फील्ड में. सो कंट्रोल लगता है कि नहीं नहीं, ये तो 3D में जाता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं मतलब, हाँ हाँ. तो वो नहीं सुनेगा वो. ओके ओके. जैसे होता है ना, दिखाता है ना सिनेमा में कि किसी का मर्डर हुआ है और वो चाकू लेके वहीं पे खड़ा है, तो इस लुक लाइक प्राइम फेसी के वही मर्डर है. है ना? अच्छा दिखाता है ना सिनेमा वगैरह में, हाँ, कि वही मर्डर है, तो उसको पकड़ते हैं, तो प्राइम फेसी वही वहां पे था वहाँ. अगर वहां पे अच्छा. कोई भी नहीं है तो हम किसी को बोला कि उसने ही मर्डर किया होगा या फिर वही क्राइम सीन पे था, तो फिर उसका फिर इन्वेस्टिगेशन होगा. लेकिन अगर कोई आदमी क्राइम सीन पे खड़ा है वहां पे, तो पहले उसको पकड़ लेते हैं, प्राइम फेसी लगता है कि वही है. ओके ओके. देन व्हाट इज द रोल ऑफ एप्लीकेंट, क्या होता है? तो व्हेन एप्लीकेंट रिसीव द नोटिस, then applicant need to give response within 2 months from date of notice, and एक कॉपी जो है ओपोनेंट को भेज देगा, जिसने प्री ग्रांट अपोजिशन का लिया था उसको भेज देते हैं. एंड देन वट एवर में बी आउटकम, मतलब कंट्रोलर कैन रिजेक्ट द रिप्रेजेंटेशन, और स्पेसिफिकेशन चेंज करने की बात आ सकती है, डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं, सब कुछ बिफोर द ग्रांट हो जाती है. और अगर कुछ नहीं होता है, देन आगे नहीं बढ़ेंगे इसको.
लेकिन यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल हो चुका है, तभी सब कुछ होगा। ठीक है, सो जस्ट रिमेम्बर दिस प्रोसेस, ये सारे स्टेप्स होते हैं। टाइमलाइन भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि काफी फास्ट फास्ट होता है। विदिन 1 मंथ ही विल रिजेक्ट। अगर अगर डिसीजन हुआ, then he will call for the hearing, and then he will accept the hearing, and then डिस्कशन होगा उसमें। आप बताओगे कि आपको क्यों लगता है ऐसा, और ये जो मैटर इज कॉम्प्लेक्स, देन यू हैव टू गो फॉर हियरिंग। आप मतलब फेस टू फेस बात करना चाहोगे। उसके बाद में एक नोटिस भेजेगा कंट्रोलर, जिसमें कि ओपोनेंट को भी कॉपी रखी जाती है, उसको बताया जाता है। पर यहाँ पर ओपोनेंट को बुलाया नहीं जाता है, समझे आपने? जो ओपोनेंट था ना, उसको बुलाते नहीं यहाँ पे कि आओ भैया तुम भी आ जाओ हियरिंग में, अब बैठते हैं डिस्कस करते हैं। और उससे कुछ मांगा नहीं जाता, और भी कोई एविडेंस कोई प्रूफ मांगा नहीं जाता है प्री ग्रांट अपोजिशन में। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्री ग्रांट अपोजिशन, तो ऐसा कुछ आ सकता है क्या? हाँ, कुछ भी आ सकता है यार, इसलिए ना सारा जो ओके सर, तो फिर सिस्टम। सॉरी, सर ये बोला, ये अभी प्री ग्रांट अपोजिशन में पूरा पढ़ना पड़ेगा सर, ऊपर से नीचे तक, कि कुछ ऐसा पर्टिकुलर है कि यही पढ़ना है सर? नहीं हम देखिए, यू डोंट ऐसा मत सोचिए कि आपको पूरा पढ़ना है, कम पढ़ना है। आप जस्ट यू थिंक कि ये सारा प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस को ध्यान रख लीजिए बस, है ना? सो रीड इट लाइक ए प्रोसेस, ओके ओके है ना? सबको ओके अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके मे बी रूल अगर अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो कोई ओके बात नहीं, लेकिन जो प्रोसेस है आप ध्यान रखें। क्या प्रोसेस है? एक एप्लीकेशन पब्लिश हुआ है, ओके, वो एप्लीकेशन 6 महीने तक ग्रांट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको उसमें पूरा टाइम मिलता है 6 महीना तक कि आप उसका प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल कर सकते हैं। तो प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल करने के लिए कोई भी कर सकता है। फॉर्म है 7A फॉर्म भरना है और आप फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपका काम खत्म हो चुका है। एज ए पर्सन हु इज फाइलिंग द प्री ग्रांट अपोजिशन, मेरा काम खत्म हो चुका है, मेरा अब इसमें कुछ काम ही नहीं है। कुछ काम है मेरा अब इसमें भी, कुछ काम नहीं। देखिए अगर मैंने हियरिंग के लिए डाला, मैंने इफ आई वांट टू गो फॉर हियरिंग, तो फिर कंट्रोलर हमको बुलाएंगे कि आ जाओ आप का हियरिंग कर। तो हियरिंग में क्या होगा? मे बी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन राइटिंग कि व्हाट इज द इशू विद दिस ग्रांट, इसमें क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर अंडर अंडर सेक्शन 3B, है ना, इफ इट इज बिकम्स हार्मफुल टू सोसाइटी, ऐसा हो सकता है कि अगर ये पेटेंट ग्रांट होता है हार्मफुल हो सकता है टू द एनवायरमेंट, टू द पीपल, जो भी है। सो हियरिंग होती है, तो ये मोटा मोटी 1 मंथ का टाइम मिलता है आपका। तो प्राइम फेस से अगर कंट्रोल लगता है कि अपोजिशन अच्छा है, he will consider it, and then he will if he sends a notice to the applicant कि हाँ भैया कुछ तो प्रॉब्लम है और आपको कंसिडर करना चाहिए, तो जो ओपोनेंट है उसको सिर्फ एक लेटर जाता है कि जो एप्लीकेंट था उसको हमने नोटिस भेज दिया है। एंड तो यू में फील वेरी हैप्पी कि देखो हमने प्री ग्रांट क्वेश्चन किया था और अब उसको नोटिस किया है। बस आप घर में बैठे रहिए, आपको कुछ काम नहीं इसमें। अब सारा काम कौन करेगा? एप्लीकेंट करेगा। एप्लीकेंट अगर उसको क्लेम चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, कुछ भी करना है, मेक दो चेंजेस विद इन 2 मंथ्स करना है उसको, एंड देन ही विल प्रोसीड। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है ये प्रोसेस को याद रखनी है। क्या क्या जो कॉम्प्लेक्स चीजें, जैसे कि प्री ग्रांट अपोजिशन इज नॉट एज ए नॉर्थ ईस्ट अपोजिशन, इट इज ओनली रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब आप देखा है आपने, आपको कोई ज्यादा राइट्स नहीं है आपको यहाँ पे, आपने केवल ओके चिट्ठी सर भेज दिया आपने, आगे कोई ओके राइट नहीं है आपके पास में, देखा ना? तो एप्लीकेंट ने वो चेंज किया कि नहीं किया, वो चेंज कंसिडर हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा चीजें आपको मालूम चलेगा नहीं आपको। ठीक है, सो द गुड पार्ट इज दैट इफ आई शेयर दिस रिकॉर्डिंग, आप उसको बार बार देखिए, उसका एक डायग्राम बनाइए, एंड देन ट्राई टू रीड इट। ओके, डू इट लाइक दिस।
हाँ सर, ये अभी आपने जो बोला प्री ग्रांट अपोजिशन है, अपोजिशन का पहला मतलब शॉर्ट में आपने बताया डायग्राम तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा सर। हाँ हाँ, मतलब एरो बना के सर। करेक्ट करेक्ट। तो अब आपका काम है अभी एरो बना के हमको ग्रुप में भेजिए, है ना? सर एक डाउट है। हाँ बोलिए। शेड्यूल वन है ना, फॉर्म्स एंड फीस, हाँ हाँ, तो उसमें 7A के सामने लिखा है 4,000 एंड 20,000 फीस लिखा है। एक मिनट एक मिनट। फिर गुड, अच्छी सो मैंने देखा नहीं कि मैंने हाँ करेक्ट, यू आर राइट। सो आई बिलीव सर लास्ट ईयर जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद ये फीस लगाई उन्होंने। हाँ करेक्ट, उसके पहले तो नो फीस ही था। थैंक यू। तो देयर इज फीस कितना है? 4,000 20,000, करेक्ट। गुड, 4,000 20,000। ओके गुड, थैंक यू। सो फीस इज नॉट नील, बट यहाँ जाइए। तो फीस इज 4,000 and 20,000, 20,000 for others and बाकी के लिए 4,000। थैंक यू। ओके, सो time taken for final decision is 1 month from date of completion of this proceedings. And if the opposition is accepted, then application is examined as rule 24C. That means expeditory examination का process चालू होता है. Okay, if it is for the opposition. Okay. So pre-grant opposition. So what are the grounds of opposition क्या क्या है? So one is wrongful obtainment. What is the meaning of wrongful obtainment? क्या होता है? सर गलत तरीके से सर पेटेंट अपटेंट बनाए हैं। मतलब क्या होता है गलत तरीके से, मतलब क्या होता मतलब समवन स्टोलन फ्रॉम समवन, है? रॉन्गफुली हाँ obtained। चोरी, हाँ गलत, ये सही वर्ड है। चोरी कर लिया किसी का आइडिया। तो आप लैब में घूमने के लिए गए, आपने देखा कुछ कुछ लिखा हुआ है, कुछ पेपर में है, लैपटॉप में है, आपने बातचीत कर लिया और देन यू गॉट द आइडिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं रॉन्गफुल ऑब्टेनमेंट का, चोरी का। मतलब किस लिए? इसलिए R&D लैब में ना लोग विजिटर बुलाते नहीं कभी, जहाँ में काम चल रहा है। एंड कॉर्पोरेट ऑफिस में और बड़े बड़े लैब्स में ना आपको लैब के अंदर घुसने नहीं देते। एंड देन आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको काफी सीक्रेट रखा जाता है। आपके लैब नोट्स को काफी सीक्रेट होते हैं। दे कम अंडर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, और किसी को बताया नहीं जाता किसी को। इवन अगर आपने कुछ इन्वेंशन लिखा है कहीं पे किसी पेपर पे, उस पेपर को आप ऐसे ही बाहर नहीं फेंक सकते आप। सो मैनी दे टेक केयर ऑफ दोस थिंग। मतलब क्योंकि पहले से कई बार हो चुका है कि लैब में कोई घूमने आता है, तुम करके देख लेते, बिकॉज इफ यू आर इंटेलिजेंट एंड यू वर्किंग इन द सेम डोमेन, आप रिएक्शन सेटअप देख करके कुछ हिंट देखा, कुछ बात किया आपने कि क्या रिएक्शन कर रहे हो, कुछ बोला उसने, देन यू यू गेट एन आइडिया। कभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत सारे बड़े बड़े डिस्कवरीज भी जो हुए हैं, दे ऑल्सो इस तरह से है। मतलब कि कोई लैब में घूम कर आया है, उसने फिर देख लिया है। सो रॉन्गफुल ऑब्टेनमेंट मतलब यू आर नॉट द रियल पर्सन, बट you took it from someone. Then presence of prior arts. Okay. Published patents or prior arts should not be section 29 2A or 2B. 2A क्या है?
2A is the matter published was obtained by applicant and published without his consent. मतलब प्रायर आर्ट तो है, लेकिन अगर आपने प्रूफ कर दिया कि उसने आपसे लेकर के बिना आपकी मर्जी के पब्लिश कर दिया है, एंड एप्लीकेंट मेड द एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट as soon as he came to know about the publication mentioned in section 29(2)(a). So we'll discuss regarding anticipation 29 in next. Okay, so हेलो सर, हाँ बोलिए। सर थोड़ा प्रायर आर्ट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है सर। ये प्रायोरिटी डेट और प्रायोरिटी आर्ट दोनों सेम है सर? नहीं बता। प्रायर आर्ट क्या जनरली पेटेंट में प्रायर आर्ट बोलते हैं। जैसे मैंने पेटेंट फाइल किया है आज का मेरा फाइलिंग डेट है, तो मेरा ये प्रोविजनल एप्लीकेशन मैंने फाइल किया, तो आज का जो डेट होगा मेरा प्रायोरिटी डेट हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर दूसरा कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल करूंगा विद इन 12 मंथ्स। तो आज के डेट के पहले जो भी मैंने टेक्नोलॉजी पे मैंने फाइल की है, जो भी मेरा इन्वेंशन है, तो सिमिलर चीज अगर कोई पहले किसी ने पब्लिश किया हुआ है, चाहे वो पेटेंट है, नॉन पेटेंट है, फेसबुक पे है, गूगल पे है, कहीं पर भी न्यूज़पेपर में है, किसी बुक्स में है, ये सबको बोलते हैं प्रायर आर्ट। मतलब आज के पहले जो भी चीजें हैं पब्लिश में, उसको बोलते हैं प्रायर आर्ट्स। क्लियर? प्रायर आर्ट मतलब यस यस। नॉलेज। प्रायर आर्ट ये एक टेक्निकल टर्म है जो पेटेंट में आपको सुनने मिलता है, प्रायर आर्ट से। तो कभी भी जो हम साइट करते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आज से पहले दुनिया में गोल चक्का नहीं था, इट वाज राउंड व्हील था ही नहीं, कोई ट्रायंगल व्हील था, फिर ट्रायंगल था, फिर स्क्वायर शेप में था। सो आई एम इन्वेंटिंग अ राउंड व्हील। ओके, सो ये ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागोनल, ये सब क्या, सब प्रायर आर्ट हो जाएंगे, दुनिया में था नहीं मतलब। तो उस पर इम्प्रूव करके मैंने गोल चक्का बनाया। लेकिन अगर किसी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गोल चक्का तो पहले किसी ने बना चुका किसी ने, तो वो प्रायर आर्ट जो है मेरे ऑपोजिशन के काम आ जाएगा कि अब मेरा जो इन्वेंशन है वो नोवेल नहीं है। तो आज के पहले के जितने भी पब्लिकेशन है, नॉलेज है, इसको बोलते हैं प्रायर आर्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो देन देयर इज ए सीक्रेट पेटेंट, हम जो कहते हैं 30 सेक्शन 13 का 1B। सीक्रेट पेटेंट कैसा होता है कि जैसे पेटेंट में 18 मंथ्स टाइम लगते हैं पब्लिश होने के लिए। तो फॉर एग्जांपल 10 महीने पहले कोई पेटेंट फाइल हुआ है, किसी ने फाइल किया, वो पेटेंट बिल्कुल नया है और नोवेल है, इन्वेंटिव स्टेप भी है, सब बढ़िया है, वो ग्रांट हो सकता है। और मैं भी सिमिलर डोमेन में काम कर रहा हूँ, माई एरिया इज ऑल्सो सिमिलर डोमेन। अब क्या हुआ कि जब मैंने पेटेंट फाइल किया, तो आई कैन नॉट सी कि जो पब्लिश ही नहीं हुआ है, फाइल तो हो चुका है लेकिन मुझे पता नहीं फाइल हुआ कि नहीं, पब्लिश नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं पता वो प्रायर आर्ट है कि नहीं। मतलब आई कैन ओनली सी प्रायर आर्ट, मतलब जो प्रायर टेक्नोलॉजी है, डॉक्यूमेंट्स है, जो पब्लिश हो चुका है। जो पब्लिश हो चुका है या कहीं मार्केट में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, मैं देख सकता हूँ, लेकिन कुछ है ही नहीं, फाइल हुआ है तो पब्लिश नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं सीक्रेट पेटेंट बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं पब्लिश्ड आफ्टर और ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग और आफ्टर, बट उसका फाइलिंग पहले हो चुका है, उसको बोलते हैं प्रायर आर्ट बोलते हैं उसको। समझ में आना ये? हाँ यस यस। देन एविडेंस ऑफ पब्लिक यूज और पब्लिकली नोन। सो अगर आपने बोला कि जो क्लेम किया गया है, सो फॉर एग्जांपल इफ आई से आई क्लेम अ पेंसिल with a eraser on top of it. Sorry, for example, so if I claim a pencil with a eraser on top of it, हाँ? तो लेकिन आपने कहीं पे you went to some exhibition, some एक्सपोर्ट्स मेला में गए, कहीं पे गए आपने, वहां देखा कि ऐसा पेंसिल कोई कंपनी ने बना के बेच रहे थे ऑलरेडी, तो आपको पता है आपको। तो उसमें लोग क्या करते हैं, दे क्लिक फोटोज क्लिक करते हैं, वो डेट एंड टाइम, कुछ ब्रोशर का निकल के आते उसमें रहता है, या फिर मान लो कि अमेजन पे सेल के लिए लगा हुआ था, तो उस अमेजन में सेल के लिए किस डेट से लगा हुआ है, उस डेट का प्रूफ चाहिए होती है। सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ऐसे आप नहीं बोल सकते प्रायर यूज हुआ दिन।
तो प्रायर यूज पब्लिकली नोन अगर है तो ये सारे प्रूफ सबमिट करने पड़ते हैं कि मैंने देखा था, कहीं पे सेल के लिए था, अमेजन पे था। तो कई बार आप जानते हैं ना वो, वी कैन लुक एट द हिस्ट्री, वेब पेज का हिस्ट्री हम देख सकते हैं, वेब पेज कब से था, कब कब एक्सेस हुआ है, सो दैट यू कैन सी। तो वेब पेज का हिस्ट्री से लोग देखते हैं कि कब से था ये। सो दैट इज हाउ दे टेक आउट एविडेंस ऑफ यूज। तो अगर पब्लिक यूज है, पब्लिकली नोन है, अगर प्रोडक्ट है, और अगर पेटेंट इज फॉर प्रोडक्ट और प्रोसेस, तो मैंने कहा कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, पेंसिल विथ इरेजर ऑन टॉप, ये मेरा प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट होता है कि मैं आई एम क्लेमिंग अ प्रोसेस, आई एम नॉट क्लेमिंग द प्रोडक्ट बट आई एम क्लेमिंग अ प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है, पहले पेंसिल बनाना है, उसके बाद उस पर गम लगाना है, फिर रबर चिपकाना है। तो दिस इज अ प्रोसेस आई एम क्लेमिंग। सो इफ इट इज ए प्रोडक्ट मेड प्रोसेस, द प्रोडक्ट मेड प्रोसेस इज imported इन इंडिया, अगर इंपोर्ट इंडिया में हुआ है देन ये पब्लिक यूज में आता है। लेकिन पब्लिक यूज इज एग्जामिनेड इन केस ऑफ रीजनेबल ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंटेशन पर्पज ओनली। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोड रोलर, अगर रोड रोलर मैंने बनाया है लैब के अंदर में, उसका टेस्टिंग तो रोड पे ही होगा, यहाँ तो हो नहीं पाएगा। तो अगर वो इट इज ओनली फॉर द रीजनेबल ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंटेशन का, हम रोड रोलर को बाहर लेके गए हैं और किसी ने फोटो क्लिक कर लिया है, उसको अगर बोल रहे हैं तो वो कंसिडर नहीं करते, बिकॉज आई कैन ऑलवेज से कि रोड रोलर के लिए एक्सपेरिमेंटेशन बाहर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया है, ये कुछ आई मेड समथिंग व्हिच मस्ट बी डिस्प्लेड इन सनलाइट, सोलर सेल मैंने बनाया है, तो इट मस्ट बी डिस्प्लेड इन सनलाइट, बड़ा एरिया चाहिए। सो दोज आर काइंड ऑफ फील्ड ट्रायल, रीजनल ट्रायल फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, बट ऑल्सो पब्लिक ऑल्सो कम्स टू नो, उनको मालूम चल जाते हैं कि हाँ यहाँ कुछ बना है, किसने फोटो क्लिक किया है, सो वो सब कंसर्न नहीं होता। सो एक्सपेरिमेंटेशन यूज, बट देन वी नीड टू प्रूव कि हम उस डेट को इस जगह पे गए थे, इट वाज पार्ट ऑफ माय एक्सपेरिमेंट। ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रूव करने के लिए कि हाँ इट वाज डॉक्यूमेंटेड, इट वाज प्लान एंड वी डिड अकॉर्डिंग टू द प्लान। हम उस डेट को इस टाइम पे इतने देर के लिए ही बाहर गए थे। ऐसा नहीं कि हम मंडे को गए और फिर 2 महीना उसी में घूम रहे हैं बाहर, हम उसको घूम रहे हैं देन हम बोले कि इट वाज फॉर रीजनेबल ट्रायल, ऐसा नहीं होगा। बट इफ दैट इज डॉक्यूमेंटेड कि हाँ 1 महीना घूमना था, जो भी है, सो इट मस्ट बी प्रूव्ड बाय योर फ्रॉम योर साइड। देन ऑफ कोर्स ऑब्वियसनेस, लैक ऑफ इन्वेंटिव स्टेप अंडर सेक्शन 2(1)(JA। ये नोवेल्टी में, जो नोवेल्टी है, दिस इज वेरी इजी टू प्रूव। नोवेल्टी में क्या होता है, अगर मेरे पास में एक इन्वेंशन है जो हमने फाइल किया है, अगर मुझे ये प्रूव करना है किसी को कि ये नोवेल नहीं है, तो आई नीड वन डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में मेरा पूरा क्लेम इन्वेंशन जो है उसमें एज इट इज मेंशन किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं कि नोवेल्टी डिस्ट्रॉइंग प्रायर आर्ट। अगर एक डॉक्यूमेंट से नहीं होता है, एक डॉक्यूमेंट से नहीं होता है, आई नीड टू कंबाइन मल्टीपल डॉक्यूमेंट एंड देन ट्राई टू एक्सट्रापोलेट इट, ये बोल के कि अगर किसी के पास ये दोनों डॉक्यूमेंट होता तो वो फिर ये जो मेरा इनमें से बना सकता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे मान लो कि लेट अस कंसीडर वेरी इजी एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया है एक कार जिसमें 6 चक्के हैं, मतलब 6 व्हील्स मैंने बनाया है। ओके, सो आज तक जितने भी कार थे उसमें खाली मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट से 2 व्हील वाले थे, मतलब तो देयर देयर कुड बी सम चैलेंजेस जिसके लिए कोई 6 व्हील का बनाता नहीं था। लेकिन अगर मैंने एक साइकिल देखा जिसमें 6 व्हील्स पे बैलेंस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, तो एक साइकिल 2 व्हील वाला है, एक साइकिल है 6 चक्का वाला, दोनों मिला करके मेरे दिमाग में आइडिया क्लिक कर सकता है कि चलो कार में क्यों नहीं लगा कर देंगे 6 चक्का। तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट, मतलब ओके, सो इट्स नॉट वन डॉक्यूमेंट दैट इज किलिंग माय एंटायर क्लेम, बट इट रिक्वायर्स टू कंबाइन 2-3 डॉक्यूमेंट्स। और ऐसा बोला जाए, अगर किसी को जैसे हो जाए, अगर किसी को रोटी बनानी आती है, चावल बनानी आती है, बिरयानी बनानी आती है, तो वो कुछ मिक्सर वाली चीज बना सकता है, जिसमें कि बिरयानी और रोटी का कुछ मिक्सर हो, पास्ता से बना सकता है। इस तरह से 2-3 डॉक्यूमेंट मिला करके हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो ये
ऑब्वियसनेस एंड लैक ऑफ इन्वेंटिव स्टेप में आते हैं. सो दिस टू प्रूफ कि ऑब्वियस है, इट इज वेरी डिफिकल्ट. देखिए क्या क्या होता है कई बार, अगर संसार में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी नहीं कर रहा आज तक, बहुत सिंपल चीज थी. सो द एग्जाम्पल्स आर नॉट कमिंग टू माई हेड नाउ, बट जस्ट कैन डिस्कस लेटर ऑल्सो. क्या था कि आज तक किसी ने किया नहीं, लेकिन जब किसी ने कर दिया तो सब बोलते हैं अरे ये तो बहुत इजी था, ये तो मैं भी कर सकता था, पर मेरे दिमाग में आया नहीं. तो कोई अगर ऐसा बोले, अगर इतना ही ऑब्वियस था तो पिछले 10 साल में किसी ने क्यों नहीं कर लिया, क्यों लोगों ने नहीं बना दिया है? अगर इतना ऑब्वियस था मतलब, यानी कुछ तो चैलेंज था मतलब. तो बैक में जा करके ये सोचना कि नहीं मैं भी कर सकता था. इसलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, पर्सन इज स्किल्ड इन द आर्ट. जैसे आर्टिफिशियल पर्सन ऐसा कुछ नहीं है. दे जस्ट थिंक अबाउट कि एक बंदा है जिसने केमिस्ट्री पढ़ेगा, केमिस्ट्री का डोमेन है. फिजिक्स का फिजिक्स पढ़ा है उसने, केमिस्ट्री पढ़ा है, उसको कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट आते हैं. अगर उस बंदे को ये दोनों डॉक्यूमेंट दे देंगे तो क्या वो तीसरा डॉक्यूमेंट बना लेगा जो मेरा पैटर्न था? ऐसा डिस्कशन होती है जब हियरिंग होती है. एंड देन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसको बोलते हैं लैक ऑफ इन्वेंटिव स्टेप्स. तो अगर ये प्रूफ होता है कि हाँ आसान है, कितना आसान है, क्या चैलेंजेस थी, किसके वजह से ये दो डॉक्यूमेंट होने के बाद तीसरा डॉक्यूमेंट हम बना नहीं सकते हम, ये सारा डिस्कशन होता है. बट इफ इट इज प्रूव तो आई मीन यू कैन विन द 3 grant opposition. नॉट एन इन्वेंशन, नॉट पेटेंटेबल, ये तो सेक्शन है ही, सेक्शन 3 का पूरा. Then insufficiency of complete specification does not describe invention or method by which it is to be performed. कैसे करना है. तो अगर आपने पेटेंट को पढ़ा, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आ रही, मतलब कि कैसे करेंगे, डिस्क्राइब नहीं किया गया है. जो एक्सपेरिमेंटेशन सेक्शन ही गायब है उसमें, या कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो क्लेम किया गया है वो रिजल्ट का कंपैरिजन ही नहीं दिया हुआ है. या फिर मान लो कि कई बार क्या होता है, दे से दैट माय कंपोजिशन फॉर यूवी प्रोटेक्शन कंप्राइजेस ABCD, और उसका आपने पूरा ऐड किया, वो 100% होता ही नहीं है, वो 60% ही होता है. तो 40% में क्या डाला इसमें, वो क्लैरिटी नहीं होगी. तो कुड बी एनीथिंग. तो स्पेसिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जो मेथड है वो सही नहीं है. सो दिस कुड ऑल्सो बी ए ground for pre-grant opposition. Then failure to comply with section 8. What is section 8? Anyone? Section 8 क्या है? सर ये जी Information वाला and जो दिया आपने, undertaking insufficiency of regarding complete foreign specification, वो आपने एक प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का एक डिफरेंस टेबल बताया था फर्स्ट लेक्चर में. उसमें आपने बोला था कि द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन टेल्स द इन्वेंशन एंड मैनर इन विच इज टू बी परफॉर्म्ड, बराबर ना? करेक्ट. वो सेक्शन 9 में आता है ना सर. इधर सेक्शन 10(4) ये कैसा है सर फिर ये वाला? अच्छा, ये सेक्शन, ये जो है ना सेक्शन 10 है ना, सेक्शन 10(4) में क्या लिखा है बताइए. सेक्शन 10 किसके लिए है? कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन. ओके. एंड सेक्शन 10(4) में क्या है कि एवरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सेल है ना, उसमें दिया है. तो ये जो है डिटेल्स fully and particularly describe the invention and its operation or use and the method by which it is to be performed. तो सेक्शन 10(4) में लिखा गया. जो आप बता रहे हो ना, वो क्या था कि जब हम प्रोविजनल फाइल करते हैं तो प्रोविजनल में प्रोविजनल कभी ग्रांट नहीं होता कभी, क्योंकि प्रोविजनल में द मेथड बाय विच इट इज टू परफॉर्म वो नहीं रहता. जस्ट डिस्क्राइब्स द इन्वेंशन प्रोविजनल. लेकिन हर एक प्रोविजनल के बाद हमको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने की जाती है. जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वही ग्रांट होता है, और कंप्लीट जो स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है, this document describes the invention and the method by which it is to be performed. तो ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होता है ये. ओके. तो अगर ये आपने डिस्क्राइब नहीं किया है, so it can become a ground of opposition. Clear now? Yes, sir. Good. So section 8 क्या है? Information and undertaking regarding the foreign applications. Okay. तो अगर
अगर आपका कोई फॉरेन एप्लीकेशन, जैसे कई बार तो पीसीटी के रूट के थ्रू हम गए हैं, या फिर जो पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे है, पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे है, उसके थ्रू हम जाते हैं, तो इन बोथ द केसेस, या फिर हमने कभी दूसरे कंट्री में हमने पहले फाइल करने सोचा है, सो इफ देर इज ए फॉरेन एप्लीकेशन है, सो देर इज ए प्रोसेस इन सेक्शन 8 हमने डिस्कस किया था, नॉट गो इनटू डिटेल नाउ। सो बेसिक क्रक्स क्या है कि सेक्शन 8 का, कि गवर्नमेंट शुड बी इन्फॉर्म, दे नीड टू बी इन्फॉर्म कि क्या चल रहा है। एंड नाउ गवर्नमेंट मीन्स कंट्रोलर, and controller can also look into the websites and available databases। तो ये सारे चीजें हैं नाउ इन सेक्शन 8। सो अगर ये प्रूफ होता है कि that we fail to comply with this section 8, so that could also be a ground of pre-grant oppositions। Then convention application not filed within 12 months from the first application date, अगर ये किसने निकाल लिया, सो दिस इज कॉल्ड प्राइमा फेसी। मतलब अगर आपने जो सबूत दे रहे हो, यू आर गिविंग दैट ये एप्लीकेशन मान लो कि जापान में फाइल हुआ था, इस डेट में फाइल हुआ था, फिर जापानीज ने इंडिया में एंटर कर रहे हैं, एंटर करते समय उन्होंने जो डेट दिया था वो 12 में से पार हो चुका है, जस्ट बाय लुकिंग एट द डेट्स यू कैन टेल। सो प्राइमा फेसी इट अपीयर्स दैट कि हाँ प्रॉब्लम तो हुआ है। ओके, सो दीज आर थिंग्स which is can form a ground of pre-grant opposition। Then wrongly mentioned geographical source, okay, again section जो 10 का 4 का D में 1B जो है, okay, so section 4D, so disclose सर the ज्योग्राफिकल source। सोर्स मतलब क्या एरिया है सर? Devajit, can you tell? Sir, geographical location means suppose if your invention is based on something, suppose you are using some biological sample or plant or anything, that has to be mentioned properly in the specification। अभी तुम कहाँ से लाए हो वो आपको बताना पड़ेगा, मतलब सोर्स उसका, मतलब जियोग्राफिकल एरिया वो करेक्टली मेंशन करना है। Correct। ओके मणिपुर से ओके लाए हो, नागालैंड से लाए हो, कि उत्तराखंड से लाए हैं, कौन सा पहाड़ी से लाए हैं, क्या है, सो दैट हैज टू बी मेंशन। देन ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था, सो सेक्शन 3। ओके, सो इज इट क्लियर नाउ टिल नाउ? यस सर।